इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 42 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है और आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं एंड लाइन असेसमेंट, जिसका सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसका पार्ट फर्स्ट इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग असेसमेंट है, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे एंड लाइन असेसमेंट का, देन हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। तो स्टार्ट करेंगे एंड लाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। Read the following passage and answer the question that will follow. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." Kezia mother would call to her. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है लिटिल गर्ल केजिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है, देन समझ लेना है। तो अब देखेंगे हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर्स। हु केम इनटू हर रूम एवरी मॉर्निंग? कौन उसके रूम में आते थे केजिया के रूम में? उसके फादर उसको उठाने के लिए किस करते थे और उठाते थे, या जब वो सोती थी तो उसको गुड बाय कहते थे, गुड नाइट कहते थे। तो ऐसा प्रत्येक पापा मम्मी करते हैं बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। वॉट वॉज दैट नॉइज? वॉज अ ग्लेड सेंस टू रिलीफ टू हर, नॉइज ऑफ द कैरियर्स। Who was the figure to be feared and avoided by the little girl? The father was the figure to be feared and avoided by the little girl. Who was supposed to bring tea, slippers for her father? The mother was supposed to bring tea and slippers for her father. Write the similar word of the given word from the passage. Ignored का similar word हो जाएगा avoided. Write the opposite word of the following and form the passage. Sad, glad. Sad यानी दुखी, glad यानी खुश होना। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various type of construction site, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to be chemical plant which was coming up somewhere. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had, he was his cook, Ishwan. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जहाँ भी वो posted होता था उसके संग में वो जो cook है महेंद्र के संग में ही जाता था, ईश्वर। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. तो उसकी जो महेंद्र की कुक जो है वो उसके कपड़े भी धोता था, उससे बातें भी करता था, सब कुछ उसके लिए करता था। वो जो उसका एक काम करने वाला बंदा कह सकते हैं उसको, उसका कुक, तो वो उसके लिए बहुत खास था। He could weave out endless story and anecdotes on varied subject. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of
nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible to miles around. माइस के अकॉर्डिंग जो अराउंड था, आसपास का एरिया था, उसको कोई भी शॉप नहीं दिखाई दे रही थी वेजिटेबल्स की. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flurries would hold Ishwaran in thrall. तो आपने ये देखा इस पैराग्राफ में एक महेंद्र नामक जो इंजीनियर है, जो देखता है साइट्स को, एक तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखता है, सुपरवाइज़र होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट का, उसको इधर उधर जाना भी पड़ता है, कई बार शिफ्ट होना पड़ता है, कई बार टेंट में भी रहना पड़ता है. तो उसी की कहानी बताई गई है जो कि तमिलनाडु के आसपास की कहानी है. तो यहाँ पर उसका एक जो कुक होता है उसके बारे में बताया गया है कि वो उसके लिए क्या क्या करता है. तो ये पूरी कहानी थी. अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर्स है. टू होम वॉज द स्टोरी नरेटेड? गणेश. किसने नरेट की थी स्टोरी? गणेश ने. महेंद्र वॉज अ क्या था? सुपरवाइजर. व्हाट वॉज द एजुकेशन ऑफ महेंद्र? बैचलर. हु वॉज महेंद्र? महेंद्र कौन था? महेंद्र वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर on hire supervisor at various type of construction sites like factories, bridges and dams. What was the qualities and job of Ishwaran? He was very well trained and wonderful cook and also a good storyteller. Storyteller भी अच्छा था वो. Ishwaran was a junior supervisor. तो नेक्स्ट देखेंगे. On what subject did Ishwaran weave story? Ishwaran's ability to weave adventure, horror, and suspense. What do you like most about Ishwaran? Ishwaran was a very fascinating and drama storyteller. He gave imaginative description of various events. Write the similar following words from the passage. Facilities नहीं, fictitious यानी imaginative. राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज. इनविजिबल का हो जाएगा विजिबल यानी गायब होना, अपेयर होना. तो इस तरह से डन होता है. इससे रिलेट ये क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. तो यहाँ हमने देखा एक स्टोरी महेंद्र की, ईश्वरन की. तो इस तरह से डन होता है सेकंड पैरा. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. यू आर सचिन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. योर classroom condition is bad. Write a letter to the principal requesting him or her to do some needful. तो आपको अपने आप को सचिन मानना है. क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, आपकी कक्षा का हाल बुरा है. इसके लिए आपको प्रिंसिपल को, या लेडी प्रिंसिपल हो या जेंट्स प्रिंसिपल हो, उन्हें आपको लिखना है एक लेटर. ठीक है. तो यहाँ पर आपको लिखना है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर. सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्टिंग टू रिपेयर द क्लासरूम. सर, I am writing to bring to your attention the poor condition of the classroom in which I am studying. The classroom is in a state of disrepair and is in dire need to maintenance. The walls of the classroom are peeling and paint is chipping off. I urge you to take immediate action to repair the classroom and provide us with the better learning environment.
थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। सिंसियरली सचिन, क्लास 10। तो इस तरह से इस लेटर को आपने देखा, तो इसे आप लर्न भी कर सकते हैं और इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिन्हें आप एक बार से जरूर से चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। तो स्टोरी आपको लिखनी है कि पिक्चर के थ्रू। तो आपको दिख रहा है एक लकड़हारा दिख रहा है, वुड कटर, और एक गॉडेस दिख रही है जो उसके कुछ ला करके दे रही है पानी में से। तो आप समझ चुके हैं कौन सी स्टोरी है ये, वुड कटर एंड रिवर गॉड। वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ a river. By chance, his axe fell into the water. He began to cry and pray to the river god. एक बार की बात होती है, एक लकड़हारा कटिंग कर रहा होता है ट्री की, रिवर के साइड में। क्या होता है ना कि उसका पैर फिसलने के कारण उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो गिर जाती है वाटर में। तो वो रो जाता है क्योंकि उसके पास में एक ही कुल्हाड़ी रहती है। द रिवर गॉड अपीयर्ड देयर एंड आस्क हिम द रीज़न। रिवर गॉड जो है वो अपीयर होती है और उनसे पूछती है कि क्यों रो रहे हैं वो। द पुअर वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी। गरीब लकड़हारा अपनी सारी कहानी बताता है। द गॉड डिवाइड इनटू द रिवर एंड ब्रॉट अ गोल्डन एग्स। द गॉड, जो गॉड होते हैं वो पानी में जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट। देन द गॉड बॉट अ सिल्वर एक्स। देन वो सिल्वर की एक्स लाते हैं। तो वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट आइदर, उसे भी रिफ्यूज कर देता है वुड कटर लेने से। देन द गॉड बॉट एन आयरन एक्स। देन लोहे की कुल्हाड़ी लाते हैं। ही एक्सेप्टेड इट हैप्पीली, वो खुशी से इसको ले लेता है। द गॉड वॉज प्लीज विद हिज ऑनेस्टी एंड गेव हिम ऑल द 3 एक्सेस एज अ रिवॉर्ड। गॉड इस बात से उसकी प्रशंसा खुश हो जाते हैं और उन्हें तीनों ही जो है कुल्हाड़ी दे देती हैं। तो मॉरल ये है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। उसका फल भले देरी मिल रहा है बट आपको हर जगह उसकी प्रशंसा देखने को मिलेगी। तो ये थी कहानी वुड कटर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको लिखना है पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है। आपकी जो भी फेवरेट टीचर है आप उनके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे बताना है पैराग्राफ में, और आप इस पैराग्राफ को भी याद कर सकते हैं। Sarita Kaur is my favorite teacher. She teaches social science to class 6th. She is a very professional. She always helps me with my doubts and she never get angry even if I ask her any doubt more than once. अगर एक से ज़्यादा बार भी मैं अपने डाउट्स को क्लियर करती हूँ या करता हूँ तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करती है। She is my very friendly and approachable and hence many of my classmates also consider her their favorite teacher. जो मेरे और भी क्लासमेट्स हैं वो भी उन्हें कंसिडर करते हैं एज ए फेवरेट टीचर के रूप में। आई रियली एन्जॉय हर क्लास एंड शी पेज अटेंशन टू ईच स्टूडेंट इन आवर क्लास। शी टीचेज इन अ वेरी इंटरएक्टिव एंड क्रिएटिव वे। हर क्लासेज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी नेवर मेक्स देम बोरिंग एंड देयरफॉर शी इज़ माई फेवरेट टीचर। तो एक टीचर की एक अपने आप में विशेषता होती है कि वो कभी भी बच्चों को बोर ना होने दें, और टीचर्स को ये भी होना चाहिए कि वो बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर सकें, उन्हें एंगेज कर सकें। तो इस तरह की जो टीचर में क्वालिटी रहती हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा टीचर मिला है तो आप उनके बारे में इस तरह से बता सकते हैं। तो बहुत सारे टीचर तो ऐसे होते हैं जो टाइम पास करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बच्चों की आगे प्रोग्रेस में। तो इस तरह से ये डन होता है पैराग्राफ माय फेवरेट टीचर पर। इसी तरह हम बहुत सारे पैराग्राफ देखे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से, और ज़रूर से देखिए पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो अब देखेंगे 6 क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चूज करनी है आपको करेक्ट वर्ब। ठीक है, देयर ब्लैंक 20 बॉयज इन माई क्लास टूडे। तो देखिए आज की बात हो रही है, टुडे टुडे लगाया है तो हम पास्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि देयर वॉज या देयर वर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास टुडे। आज मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, आई ब्लैंक ऑलरेडी द रेड फोर्ट। मैं जा चुकी हूँ, मैं विजिट कर चुकी हूँ ऑलरेडी रेड फोर्ट को, लाल किले को। तो क्या बोलेंगे इसमें, आई हैव ऑलरेडी
visited the Red Fort. My father कब आते हैं घर? 7 PM डेली। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा कि रिटर्न लिखें या रिटर्न्स लिखें, तो यहाँ पर लिखेंगे माय फादर रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए माय फादर सिंगुलर फॉर्म है, तो रिटर्न्स आ जाएगा। माय फादर रिटर्न्स होम एट 7 PM डेली। राधा ब्लैंक इन दिस स्कूल सिंस 2020। 2020 से राधा पढ़ रही है इस स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर अभी भी पढ़ रही है, बात चल रही है, बट पास से लेकर के अभी तक चल रही है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैज़ बीन स्टडिंग। ठीक है, ये होते हैं वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। हमने पिछली वर्कशीट में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा था इनडायरेक्ट स्पीच को, तो आई होप कि आपको वो पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टूडे। उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रही हो आज तुम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड मी हो जाएगा। वेयर, देखिए WH वर्ड को कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट में, तो वेयर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यू की जगह पे, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है, मैं बता रही हूँ अब कि उसने मुझसे कहा मैं, तो यहाँ पर मैं के लिए आई लगा देंगे। आई के साथ में लग जाएगा वॉज। मैं कहाँ जा रही थी आज, वह उस दिन। ठीक है, मैं कहाँ जा रही थी उस दिन, तो आई वॉज गोइंग दैट डे हो जाएगा टुडे का। द टीचर सेड वर्क हार्ड, टीचर ने एडवाइस किया कि वर्क हार्ड करो, तो द टीचर एडवाइस टू स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइस टू वर्क हार्ड। इस तरह से भाई हम लिख सकते थे, या फिर आप लिख सकते हैं द टीचर टोल्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, दोनों ही तरह से आप लिख सकते थे यहाँ पर। 8th क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्लीज गिव फूड। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, और वर्ब की फॉर्म एज इट इज रहती है और अदर सेंटेंस एज इट इज रहता है। वर्ब की फॉर्म में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म में चेंज करके आप जो अदर सेंटेंस है वो ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, प्लीज गिव फूड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव फूड। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया खाना दे दो, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव फूड। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि प्लीज़ लगा हुआ है। प्लीज़ या काइंडली से रिलेटेड अगर आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, और एज इट इज सेंटेंस में आगे वाला जो पार्ट होता है वो लिख देते हैं। द टीचर टुक अ टेस्ट यस्टरडे, टीचर ने कल लिया था एक टेस्ट। अ टेस्ट वॉज टेकन बाय द टीचर प्रीवियस डे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी हैव स्पेंट 2 days इन दिल्ली। तो यहाँ पर फ्रेम करना है आपको क्वेश्चन को, हाउ मेनी डेज हैव वी स्पेंड इन दिल्ली। नेक्स्ट है, एड क्वेश्चन टैग, आई वॉज देयर विद यू, वॉज नॉट आई। क्वेश्चन टैग बनाना है ना हमें, आई वॉज देयर विद यू, वॉज नॉट आई, मैं वहाँ पर थी तुम्हारे साथ, क्या मैं नहीं थी। तो ये क्वेश्चन टैग रहता है। 10th क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट सिंगुलर प्लूरल वर्ब। द डॉक्टर एंड द पेशेंट इज टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखिए 2 जने हैं, तो 2 जनों के लिए आर का यूज करेंगे यहाँ पर हो जाएगा द डॉक्टर एंड द पेशेंट आर टॉकिंग टू ईच अदर। शी एज वेल एज आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो देखिए एज वेल एज अगर सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि आई के अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा शी एज वेल एज आई आर रेडी टू हेल्प यू। 11th सेंटेंस है, 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड the died child to all her neighbors, asking them for medicine, and people said she has lost her senses. The boy is dead. At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakyamuni the Buddha. Kisa Gautami repaired to the
Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl, in her joy, promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, patient, parent, or friend." कि ऐसा कोई भी घर ढूंढो कि जहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई है, यानी या किसी बच्चे की या हस्बैंड की या पेरेंट की या फ्रेंड की। तो ऐसा घर ढूंढ के दो मुझे और वहाँ पर ये मस्टर्ड सीड्स दे देने हैं तुम्हें। तो उसको कोई भी घर नहीं मिलता है, तो उसने समझ लिया था कि ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है, डिप्रेशन में जाने की बात नहीं होती है, क्योंकि जो आया है उसको जाना ही है एक दिन। तो देखिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब इससे रिलेट। हाउ मेनी सन डिड कीसा गौतमी हैड? वन, एक बच्चा था उसका। व्हाट डिड कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस? मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड्स को सर्च कर रही थी। व्हाट डिड गीता गौतमी आस्क बुद्धा टू गिव हर? मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कहा। वाई वॉज गीता गौतमी ग्रीफ स्ट्रिकन? गीता गौतमी lost her only son. In her grief, she carried her dead child everywhere and asked people to cure him. उसको ठीक करने के लिए बोलती है वो। To whom does Kisa Gautami go to get the medicine? Kisa Gautami went to the Buddha for medicine for her dead son. From the above passage, the similar word of sorrow, sorrow का होता है grief. इसके अलावा में एक और पैसेज दिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है ये। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो पहले पैसेज को रीड करते हैं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. माई सिस्टर Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Archie to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो क्वेश्चन है, Annie father emigrated to Holland. Annie teacher was Mrs. Cooperus. Annie and Margaret were sent to Aachen to stay with their grandmother. Fourth question है, what does Annie tell us about her father? Annie described her father as the best father in the world in her diary. Annie's father, Otto Frank, was caring, gentle, modest, and peacemaker who wanted the best for his daughter. He was more tolerant towards Annie and gave her more freedom. Who was Mr. Cooperus? Mr. Cooperus, when Annie joined her family in Holland, she straightway joined Montessori Nursery School and stayed there till the age of 6. In the first form, her class teacher, Mrs. Cooperus, who was also the headmistress, Annie was very attached to her. From the above passage, find similar word for goodbye. Goodbye का similar word होता है farewell. Farewell देते हैं बच्चों को जब एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं, एक स्कूल से दूसरी स्कूल में चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है कोई भी 3 का. हम सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. फर्स्ट है, हु वॉज वल्ली एंड व्हाट वॉज हर फेवरेट पास टाइम?
Wali is an 8-year-old girl. She is a girl of story determination. Wali's favorite pastime was to stand in the front of doorway of her house and watch what was happening in the street outside. It was as amusing to her as any game to the children. She had many new unusual experience to by watching the street. स्ट्रीट को देख करके उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस आते थे और वो उसको बहुत अच्छे से लेती थी। बट और बच्चे खेलते थे बट वो उस स्ट्रीट को देखती रहती थी, स्ट्रीट में जा रही आ रही बस को। वेयर वर लेंचो हाउस लोकेटेड? व्हाट डिड ही होप फॉर? Lencho's house was located on the crest of a low hill in a valley. Lencho hoped for a good rain. He hoped that a good rain would give him a good harvest and they would live happily for the whole year. Why did the sight of the food maddened the young seagull? The sight of the food maddened the young seagull because he was extremely hungry and desperate to survive. He had not eaten anything for the last 24 hours. Describe the inauguration ceremony in your words. नेल्सन मंडेला से लिया गया है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द amphitheater formed by Union Building in Pretoria because it was the grand occasion of swearing in the Nelson Mandela as the president of South Africa. साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट बने थे, उनके उपलक्ष्य में ये रखा गया था इनॉग्रेशन सेरेमनी। 15 क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो देखिए, व्हाट थिंग डज Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who need love. Miss Bill, the otter से related है ये। Miss can turn the water tap to produce full flow of water. They show his intelligence. From the second night of his arrival, Miss comes onto the author bed, sleeps in the crook of his knees. When he is packed in a box and become injured, B goes on the knees of the author. In the aircraft, after disappearing, he repairs hands onto the author's knees and nuzzles his face and neck. Do you think Padder was an important person in the village in the old time in Goa? Explain why. A baker from Goa से लिया गया है ये। The Padder was an important person in the village in Goa because they were an integral part of the community's daily life and culture. Padders delivered fresh bread to household and supplied bakery items for social and religious ceremonies. फ्रेश ब्रेक्ड आइटम्स वो प्रोवाइड कराते थे पैटर। 16 क्वेश्चन है, आंसर करना है आपको, कोई भी एक करना है बट हम सभी देखेंगे। Chubuko says to Natalia as if she want consent. She is in love, egged. She is like lovesick cat. Would you agree? Give reasons for your answer. Yes, I agree that she is in love. Chukubo knows about his daughter that she is in love, so he says there is no reason why she will not consent. She loves Lomo. It is clear from the situation when she comes to know that Lomo come to propose her, but she and her father quarrel with him. So when Lomov goes away, she tells her father to bring him back at once. Which is your favorite character in the play? Explain why. The proposal से लिया गया है। Our character our favorite character is Natalia because she is a good housekeeper and an educated girl with good looks. She is the lead female character of the play and the daughter of Chubuko. She is short-tempered and greedy-natured girl. She has no much respect for Lomov till she come to know that he want to marry her. तो उसने जाना कि वो उससे शादी करना चाहता है तो वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करती है। Read the following extract of the poem and answer the question that follow. आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम का, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है।
तो इसे पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन्स डाउन द स्टेट्स। मस्टर वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। कस्टर्ड जो था वो सुरक्षित पिंजरे में ही रहना चाहता था, वो उसके लिए ही रो रहा था। ठीक है, तो राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, व्हाट आर द लिटरेसी टर्म यूज इन अबव एक्सट्रैक्ट। आपको यहाँ पर राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स बताने हैं और एक लिटरेसी टर्म बतानी है इस एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम AABB हो जाएगा। राइमिंग वर्ड्स हैं बियर, स्टेयर्स, केज, रेज, है ना। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम है AABB। तो देखिए यहाँ पर बियर, स्टेयर्स हो जाएगा, रेज, केज हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सट्रैक्ट का जो आपका निकला है, इसमें संक्षिप्त में हमें क्या पता चल रहा है इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू, तो लिखते हैं अल्ट्रेशन। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। साउंड इज रिपीटेड। स्माइल। Belinda's bravery is compared to that of a barrel full of beers. As a barrel full of beers, Mustard's bravery is compared to that of angry tiger. Essence use of vowels sound A. Belinda is brave as a barrel full of beers. तो यहाँ पर ये इसका एक्सट्रैक्ट निकला था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इससे रिलेट, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स meaning. The poem that the Tales of Custard the Dragon by Ogden Nash is about the themes of bravery, fear, and true nature of courage. The poem's central idea is that everyone has a special significance and unique skills of that people should not be judged by their appearance of thoughts. The poem also conveys the message that even a timid person कैन बी हीरो इन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। छोटा सा व्यक्ति भी एक अपने उसके अनुकूल सर्कमस्टेंस पे खरा उतरता है, ये हमें इससे सीख मिलती है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपने लॉइन और चूहे की तो कहानी सुनी होगी, जिसमें लॉइन समझता है कि वो छोटा सा चूहा है, क्या करेगा मेरी हेल्प, बट जब वो पिंजरे में कैद हो जाता है तो उसी चूहे के द्वारा उसके पिंजरे को काट करके उसे आज़ाद कराया जाता है। तो कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कहीं ना कहीं उसका अपने अनुकूल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और उन्हें परखा नहीं जाना चाहिए कि ये तो पागल है या ये भी तो कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इस पोइम का एक मैसेज है। तो यहाँ पर हमने देखा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रेंजर दे रखा है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज he has leapt on you, you will know is the leopard. Twilado no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Write the rhyme scheme, rhyming verse. देखिए यहाँ पर ABCC हो रहा है। ठीक है, पेपर, लेपर्ड, पेन, अगेन। ठीक है, व्यू, यू। तो ये ए बी इस तरह से हो जाएगा और लास्ट वाले CC हो जाएंगे। तो राइमिंग वर्स यूज हो गए हैं। देखिए, व्यू व्यू, यू, पेपर, लेपर्ड, पेन, अगेन। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट बताना है इस पोइम का। ठीक है, देखिए अब देखते हैं इसका एक्सट्रैक्ट जो है। द पोइट सेज दैट द लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज येलो स्किन, ही लेप्स ऑन द पर्सन एज सून एज ही सीज हिम, ही स्किल्स हिज प्रे एंड स्टार्ट्स ईटिंग इमीडिएटली, ही इज एन एक्सपर्ट एट लेपिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है, आपको 20 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अमेंडा आफ्टर रीडिंग द पोइम अमेंडा? After reading the poem Amanda, you might get the impression that Amanda is a young, restless girl with a vivid imagination who craves freedom and solitude. What message does the poem Animals convey? The poem Animals by Walt Whitman conveys the message that animals are better than humans because they
retain good qualities than human have lost. उनकी अभी भी गुड क्वालिटीज़ हैं जो कि मनुष्य ने खो दी है कहीं ना कहीं। तो एनिमल्स हमको ये मैसेज देती है कविता जो है एनिमल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम और एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एनी। आपने देखी ये वाली कविता, बहुत ही सुंदर कविता है, एनी गैकोरी। The topic of ideal beauty and the influence it has upon individuals is the theme of this poem. We should love the inner beauty more than the outer beauty of the person. हमें अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए, ना कि बाहर की सुंदरता, कि वो काला गोरा कैसा भी है, चाहे वो कैसी भी सूरत का हो, बट उसकी अंदर की विशेषताएं क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें उस इंसान को जज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट alternatives. What spoiled Mr. and Mrs. Loisel Fraser? The loss of necklace. The eldest daughter of Lamlal was Radha. Who is the author of the book A Question of Trust? Victor Canning. आंसर करना है आपको दिए गए क्वेश्चन के। How did the invisible man first become visible? The visible first became visible when he stepped into some mud and left footprints as he walked. Draw brief character sketch of Anil. आपको ड्रॉ करना है उसके कैरेक्टर को, तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको करना है क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था। तो अनिल वॉज अ काइंड, सिंपल एंड easy going young man. He was tall and lean stature and interested in sports like wrestling. He was not very rich and could not afford to employ Hari as a cook. He had the patience and godness to not only teach Hari to cook but also to read, write and add numbers. तो ये अनिल की विशेषताएं थी जो कि हमने देखी। How was the discharge scene of Tricky from his hospital? When Tricky was discharged from the hospital, everyone was in tears, including Mrs. Pomfrey, who gave a cry of desperation. The staff was also involved in the discharge. Answer any one of two following question in about 60 words. What are the qualities that go into the making of a scientist? A sharp mind, curiosity, and the will to success for the right reason. According to the author, are three qualities of go into being a scientist. साइंटिस्ट की विशेषता होती है, एक तो जानने की इच्छा होती है उस आदमी में, एक शार्प माइंड रहता है, तुरंत से हाजिर जवाब होना चाहिए उसको, विल भी और एक पेशेंस होना चाहिए उसके लिए कि वो सही चीज़ें कर रहा है, उससे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ होती हैं ऑथर के थ्रू बताई गई हैं एक साइंटिस्ट बनने के लिए। Write about the honesty of Horace is a reality as you get from the story. Horace उसके बारे में बताना है हॉरेस की। तो हॉरेस डैनबी वॉज ऑनेस्ट बिकॉज ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट बिकॉज ही स्टॉल once a year. As he loved collecting rare and expensive books, he robbed a safe every year to finance the purchase of these books through an agent. एजेंट के थ्रू खरीदने के लिए उसको शौक था एक्सपेंसिव बुक का, कलेक्टिंग रेयर और एक्सपेंसिव बुक का, तो उनके लिए उसको पैसे चाहिए होते थे। तो वो 1 साल पहले क्या करता था, चोरी किया करता था उन बुकों को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका एंडलाइन असेसमेंट पार्ट 3, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा पूरा एंडलाइन असेसमेंट आपका डन हो जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो भी पार्ट आपका मिसिंग है आप देख सकते हैं चैनल की थ्रू, यानी कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसके बाद अभी हमारा स्टॉप नहीं हुआ आपके क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस। इसके बाद हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर्स आपके कक्षा से रिलेट। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।